خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ عام بجٹ لوکن ہند مفاد نظر تل تھوت تیار کرنے آمت جموں کشمیر ہندین لوکن باپت بجٹس مز واریاہ کی منوج سنہا ہلر کوکر ناگس مز اچانک کئی لوگ بیمار مقامی لوکن مز تشویش محکمہ صحت چہ کئی ٹیم علاقس کن روانہ تو جموں کشمیر پاور امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف سوپرس مز احتجاج انتظامیہ خلاف نعرہ بازی انصاف فراہم کرنے مظاہرینو مانگ ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل ایل جی منوج سنہان ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت پیش کرنا آمت بجٹ عام لوکن ہند مفاد نظر تل تھوت تیار کرنا آمت تو جموں کشمیر حوالہ مرکزی سرکار طرف فراغ دلی ہند مظاہرہ کرنا آمت یم ست جموں کشمیر مز روزن ولس پریت اکس فائدہ واتنچ ومید چھ میں بھارت کے ماننی پردھان منتری جی اور وت منتری جی کا ہردے سے ابھینندن کرنا چاہتا ہوں. ایک ایتہاسک بجٹ کل دیش کی سنسد میں پرستت کیا اور مجھے لگتا ہے کہ وکست بھارت کی مضبوط بنیاد یہ بجٹ رکھے گا اور وکست بھارت کی مضبوط بنیاد کے ساتھ ساتھ وکست جموں کشمیر کی بھی مضبوط نیو رکھے گا. جیسے پہلے سے ہی ہم سب کو گیات ہے کہ کسان، یوا، مہیلا اور غریب یہ جو چار طبقے ہیں مکھیہ روپ سے فوکس کے کیندر بندو رہے ہیں. کسانوں کی آمدنی کیسے بڑھے، کیسے آرگینک کھیتی کی طرف لوگ جائیں تاکہ پریاورن بھی سرکشت رہے، لاگت کم ہو کھیتی کی، یواؤں کو کیسے ادھک سے ادھک روزگار ملے، ناری شکتی کیسے سواولمبی بنے. ایم ایس ایم ای پر وشیش فوکس دے کر کے مجھے لگتا ہے کہ روزگار بڑھانے کو بڑا پروتساہن دیا ہے. جموں کشمیر کے بجٹ میں بھی ہماری چنتاؤں کو، یا میں کہوں کہ جموں کشمیر کے اوور آل گروتھ کے لیے وت منتری جی نے مفت حد سے پیسہ دیا ہے. ایک بار بجٹ پارت ہو جائے گا تو جیسی پریپاٹی رہی آپ سب لوگوں کو بلا کر کے ایک بندو پر ہم چرچا کریں گے. بہت بہت دھنیہ واد. ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی حنیفہ جانن آز لوک سبھا مز لداخ خطک معاملہ وتلاوان ایوانس وونمت یودوے وری 2019 پتہ لداخ خطک لوک حقوق حاصل کرنے باپت تقدو کران تاہم مرکزی سرکار طرف خط کن لوکن ست کرنے آمت وعدہ پورا کرنے حوالہ کان قدم تلنے یوان. میڈم، لداخ اس دیش کا ایریا کے حساب سے سب سے بڑا کانسٹیٹوئنسی ہے اور اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹنٹ ہم سب کو معلوم ہے. ایک طرف سے چائنا بارڈر اور ایک طرف سے پاکستان بارڈر. لداخ کے عوام بہت ہی امن پسند اور بھائی چارگی سے رہنے والے عوام ہیں، سچے دیش بھکت ہیں اور جب بھی دیش کے لیے ضرورت پڑی دیش کے لیے قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹی. میں 2019 میں ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کر کے لداخ کو یو ٹی دی گئی. حالانکہ لداخ کے آدھی آبادی جو ہے وہ اس یو ٹی کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں یو ٹی سیٹ اپ ہوئی. لیکن یو ٹی سیٹ اپ ہونے کے بعد جن لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ بھی اس یو ٹی میں ناخوش ہیں. جس یو ٹی کی ڈیمانڈ یہ لوگ کر رہے تھے وہ یو ٹی یہ نہیں تھی. وہ لوگ بھی یو ٹی وتھ لیجسلیچر کی ڈیمانڈ کر رہی تھی. پچھلے 4 سالوں سے ماننی سدسیہ وشے کو رکھیے. پورے لداخ کے عوام جو ہے وہ احتجاج پہ ہے 4 ڈیمانڈ کو لے کے، جس میں وہ لوگ فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول کے اندر کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ. لداخ میں 2019 کے بعد پی ایس سی وہاں پہ ختم ہوئی. وہاں پہ
अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है, बेरोजगारी धन्यवाद, वहाँ धन्यवाद काफी माननीय बड़ी सर, है। धन्यवाद। तो 6 शेड्यूल के अंदर अग्निवीर स्कीम ब्रोकुन इन पत ये मरकजी सरकार खिलाफ दुरुस्त मुल्कस मज एहतजाजी मुजाहिर सपद अमे पत यह स्कीम मुतारिफ सपदन पत कया नौजवान फौजस मज शामिल सपद तो मरकजी सरकार तरफ यमन नौजवान दोयमन फोर्सचन विंगन मज राहत दिनस हवाले ऐलान करना आव तत CRPF क्यों जिम्मेदारों तो CIS क्यों जिम्मेदारों तरफ वन आमद हुक्मनाम जमीनी सतरस पे अमलावन हवाले कदम तुलना आमद तो अम सि CRPF तो CISF मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपद। जहाँ तक अग्निवीर को CRPF में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा CRPF का जो हमारा RR है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहां ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएगा, और उसका फायदा भी होगा क्योंकि हम उनको उस हिसाब से उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आगे चलते एक हमको आर्मी ट्रेंड व्यक्ति सोल्जर के रूप में मिल जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार CISF ने भी एक्स अग्निवीरों की CISF में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें PET, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर जो भी एक्स अग्निवीर हैं वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह CISF भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर CISF के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि CISF को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा, जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी। उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से CISF में सेवा का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगा। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर जिला अनंतनाग दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कईयान सेल्फ हेल्प ग्रुपन सहित मुलाकात कोर तत तिमो वोनमुत सेल्फ हेल्प ग्रुपन सहित जुड़ित जन मेहनत तो खुशी सान पन कामकार अंजाम दिवान तो यमन जन ब्रोह पकनस मज मदद करनस हवाल रोज महकम तिमन प्रेथ रंग मदद करान युत जन यमन जन ब्रोह पकनस मज कुछ किस्मिक मुश्किल वेतरिन पेन। नहीं, बेसिकली मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हमारा जो ग्रुप है अच्छा काम कर रहे हैं। ये फीमेल्स यहाँ पे जुड़ी हैं, इन्होंने न्यूलम के तहत ये ग्रुप बनाया है, जूट के बैग्स बनाते हैं। तो काम इनका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिस पैमाने पे हम चाहते हैं उस पैमाने पे नहीं चल रहा है। मैं इसीलिए इनसे मिलने आई ताकि ये अपने जो इनका काम है इसको बढ़ाएं, और हम भी देख रहे हैं कि हम इनकी कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पॉलीथीन यूज़ करना बैंड है। मैं चाहती हूँ कि इनके जो ये बैग्स हैं ये घर घर पहुँचे। ये हमारा एक अच्छा यूनिट है न्यूलम के तहत जो इस्टेब्लिश हुआ है,
और उससे इनका कारोबार भी बढ़ेगा और इनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा एनवायरनमेंट बचाने में, क्योंकि ये आपको ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक का दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे। मैंने अपने ऑफिसर जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग के हैं, मैंने इनको साथ लाया था ताकि ये भी हमें यहाँ पे सपोर्ट करे इसमें और इनकी जो मार्केटिंग है उसमें। तफसील हिलर कोकरनागस मज ये रात पे कई लूक अचानक दस्त तो दोयमन बीमारियों मज मुब्तला सपदन सहित आम लूकन मज तशवीश पैद सपदमुत तज महकमे सेहत तरफ इलाकस कुन टीम रवाना करना आम युद्ध जन लूकन मज पैद सपदमुत तशवीश दूर करने ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव युद्धवे इलाकस मज लूक नासाफ चनाब चनस पे मजबूर सपदमित तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन आज लूक मुख्तलिफ बीमारियों मज मुब्तला सपद। पंद्रह दो डायरिया सारी गसान तोर फिक्र क्या कोशिश करान पे आय वुचान यह कम आय गो क्या गो बासो मेन मकसद द्राव आब खराब आब वनकन 4 कनेक्शन हिलड़ हर जायस हर कह लॉन वनकनस सारे लॉन डिसमेंटल इन कुन लॉन आब पकान यह क्या बहुत मौका पे लॉन ये हान तुम वो लॉन अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब वो सी मौका पे सह दी लॉन पाने नजर मे कर पे रुपये 2 लाख खर्च मे क्या खर्च अगर न अवामस अमुक मतलब इस्तेमाल वो फायदे वो यह कत चीज अगर असे मेन बाजार पे आब दिख यह मुलाजमन खता कह अगर यमो मेन अस दीन बूझ चढ़ाई पे अस दीन सागन पे मेन थ्रू कामयाब इन गई आब सदन मतलब आब नागु आब चवान दपान साफ मगर दपान यह खराब अच्छा यपर घर खास कर वनकन 2 महल अत केस मन ज्यादा मानने इन जन वनकन डायरिया ज्यादा सोवरिस मज पेशेंट इस्लामाबाद मज कोकरनाग रटने तकरीबन 15 पे 20 ताम नत 3 पे मतलब तुम गई 2 शेन तुम वनकस 4 गरन वनकस तम पेशेंट गर रटित मतलब हस्पताल मन जाए वनकस वुचना टीम आव टीम आव वनकन कोकरनाग टीम वोत वनकस तम मौका तो हस्पताल वाल आए तम मौका कर तिमन ताम क्या ये बेमार गई इन सोचन कत पे कर इलाज सोन डिमांड गन आब ये साफ मेहरबानी कर दीन तवज्जो मेन मकसद जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आज अमरगढ़ सोपरस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत युद्धवे तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहुंद तनख्वाह वक्तस पे वागुजार करने यम किन तम मुश्किल मज हेन आमद ये जन यमो मुलाजिमो अत तरफ मौके पे वोन ये तम गवर्नमेंट मुलाजिम तो बिजली महकम कॉर्पोरेशन सपदन पत तिमन सत वादो करना आमुत तिमन यह तिथे पे तनख्वाह फराहम करने ये बाकी महकमन मज काम करने वाले गवर्नमेंट मुलाजिमन करने ताहम सह वाद पूरा करना आमुत यम किन यम आवलिनस मज हेन आय एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इसलिए कि आए दिन हमें तनख्वाह पर सताया जा रहा है, चूँकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमें हक बनता है, हमें फर्स्ट के दिन अपनी उजरत मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब से कॉरपोरेशन हुआ है हमें ग्रेट एंड ऑड एड के तहत तनख्वाह मिल रहा है, जो हमें कतन मंजूर नहीं है। हम मैनेजमेंट से बावर करना चाहते हैं, चूँकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं,
जब से कॉरपोरेशन हुआ है हमें लिख कर दिया गया है कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आपके साथ कॉरपोरेशन के जो लवाजमात है, जो रूल्स है, वो आप पर मुंसलिक नहीं होंगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा तनख्वाह ग्रेड एंड ऑड के तहत क्यों मिल रहा है। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम मैनेजमेंट को इल्तिजा करते हैं, हम बाल बच्चे वाले हैं, हम सड़कों पर मत निकलने की हमें तरजीह मत दे दो, हम सड़कों पर नहीं निकलना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से और गवर्नमेंट मुलाजिमों को तनख्वाह मिल रहा है बैंक के थ्रू, हमें भी इसी तरह से तनख्वाह मिलना चाहिए। एक दिन आप देख रहे हैं जो कि गवर्नर साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि जो बिजली मुलाजिम हैं वो तन मन से काम कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं हर महीने एक दो हमारे डेलीवेजर भाई जिन्होंने अपनी शहादत पोलों पर दी है, आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। जो डेलीवेजर भाई मर गए हैं और जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी पुरसान के लिए गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया। उनके बच्चे रो रहे हैं, भीख मांगने पर वो लोग मजबूर हो गए, लेकिन 9,000 की तनख्वाह पर उनको छतरगाम पुलवाम के कैंचो बाग वालों तरफ शिकायत बावान वन आमुद जे हाई डेंसिटी बागस दवापोशी करने सहित तिहंदिस बागस सठोई नुकसान सपुदमुत यदवे यह मामले मुतलक महकम के जिम्मेदारन तो यूनिवर्सिटी हिंदन महरन ताम वातनावन आव, ताहम यमो महरो जिम्मेदारों तरफ वन आमुद जे यह दवा यूनिवर्सिटी तरफ मंजूर करना आमुद यम किन अत मेव बागस सठोई नुकसान सपुद। ये मुतासर बाग वाल तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आई, तत जिम्मेदारों तरफ बाग वालन वन आमुद तिम गन महरन हिंदन मशवरन पे अमल कर मेव बागन हुंद छिड़काव कर युद्ध जन तिहंदन मेव बागन नुकसान सपदे। ये जन तमो अत मौकस पे वोन जे बाग वालन पजे जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर तरफ मंजूर करना आमती दवा बागन मज इस्तेमाल कर युद्ध जन तिहंदन बागन नुकसान वाते। यह दवा लगन से तो माइट ति बगोस अत मे दप चलो कुलन से माइट यह दोनवे दोपन बी AC फार्म SC फार्म यह कर रेस्ट कह दहमे आज बह सुले नजर मे वो ब्लास्ट गोमुत अख गो दजुन ब्याक तुम पान वुचान यह ब्लास्ट गोमुत यह खत्म गोमुत पत कोर अमिस कंपनी वालिस फोन तम दप दोद तो दोद बस वो यह रिक्वेस्ट कर कि मानि अयालो करू चार मोन करू चार चीफ साहब ते आव यूनिवर्सिटी वाल ते आय ये मलंगपोरा साइंटिस्ट तिम ते आय तमो दप यह गोमुत यी न वापस तमो दप यह दवा यह गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कह यूनिवर्सिटी यह रिकॉग्नाइज कोर्मुत कह यह हेको न बागन कर गो बागस माइट उतर मे 8वीं तारीख पे गए 8वीं तारीख बागस मज दप कर माइट दवा पे गए पन्नस दवा डीलरस नश अमिस नश दवा अनान तम दप तथा माइट मे बह नेहरन कुन जाए सेदान तम दोपन वुकन आमुत दवा माइटो फिक्स यह सह से मारान तो यह माइट त मारान तुम करू सा यह दो फी लीटर त्रो 1 ग्राम पे पत बागस मज अत वुच 5000 दिवत को दवा वालिस फोन है 5000 दो तम तमो दोप हे आप ते गए कंपनी दोप है यह खुश गो तह करू गो लड़ो ना लड़नस दो तो दोद बाग लड़ो ना लड़नस ताकत क्या ग्रीस युत मंगान इंसाफ प्रस कुन कंपनी प्रस कुन गवर्नमेंटस दपान कि हाकिमन कि यमन हेयो अम बागुक मुआवज रात चीफ साहब रात मलंगपोर वाल तमो दोप यह बाग नई कर लागुन वो वन बशर पे नए लागुन बाग। 9 तारीख को ये इस फार्मर ने एक केमिकल की स्प्रे की है। ये केमिकल रिकमेंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और जरी यूनिवर्सिटी के जो स्प्रे शेड्यूल है उसमें रिकमेंडेड अभी तक नहीं है, ये कोई टेस्टिंग में नहीं गया है ये, लेकिन जो लाइसेंस में इंक्लूजन है इसकी सेल का वो परमिशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से उनको मिली हुई है कि ये इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एप्पल के लेबल क्लेम इस पर नहीं है। तो पूरे ऑर्चर्ड का मुशाहिदा किया हमने तो देखा गया कि पौधे मोस्टली उनकी फॉलिएज मैक्सिमम डैमेज हो गई है, फ्रूट भी डैमेज हो गया है उसका। तो इस पेस्टिसाइड के उस डीलर से हमने जो सैम्पलिंग जो एज पर इंसेक्टिसाइड एक्ट जो हमें कार्रवाई करनी थी उसके सैंपल्स उठाए, वो सैंपल्स भी डिजिग्नेटेड लैब में चले गए। इसके साथ साथ डायरेक्टर की साहब की डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जानकारी में भी मैंने ये दोनों चीज़ें लाए
तो साथ में हमने मेरा जो इमीडिएट रूल था उस वक्त इस फार्मर तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।